السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بزنس کلاسز اچھی لگ رہی ہیں۔ آج ہمارا تیسری کلاس کا دن ہے اور ہم نے اس سے پہلے کلاس 1 اور 2 اپلوڈ کی ہے، تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 اور 2 کلاسز نہیں دیکھی تو آپ پہلے ان کو جا کر دیکھیں اور اس کے بعد نمبر 3 دیکھیں، کیونکہ یہ ساری اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ہم فالو کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں جو ہے آسانی ہوگی۔ اور آج کی کلاس تھوڑی سی بورنگ ہے، لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس پر ہم کرنے والے ہیں۔ کوئکلی میں ریکیپ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے فرسٹ کلاس میں کیا ڈسکس کیا تھا۔ فرسٹ کلاس تھی ہماری اس بارے میں کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہم بزنس کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں، اور سیکنڈ کلاس ہماری اس بارے میں تھی کہ ونس یو ہیو ڈیسائیڈیڈ دیٹ یو ڈو وانٹ ہیو یور اون ہوم بزنس، اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے اسکلس کو اسیس کرنا ہے، اس کے بعد اپنے کمپنی کے نیم اور لوگو پر فوکس کرنا ہے۔ اور آج کی کلاس ہماری ہے لیگلائزیشن پہ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تو میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو اگر آپ پسند کریں تو پلیز اس کو بڑا سا تھمز اپ دے دیں، کیونکہ یہ یوٹیوب الگوریدم کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ آپ کی طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں جن تک یہ ویڈیو پہنچ سکتی ہے، سو جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اتنا اچھا ہوگا، میرا مشن اتنا ہی پورا ہوگا۔ سو تھینک یو سو مچ فار دیٹ۔ اب چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو لیگلائز یور بزنس۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم نے کلاس نمبر 2 میں بہت ہی بریفلی ڈسکس کیا تھا اس بات کو۔ میں نے بہت کوئکلی آپ کو گوگل پہ سرچ کر کے دکھائی تھی کہ اگر آپ سرچ کریں سم تھنگ لائک کہ کین آئی لیگلی سیل کیکس فرام ہوم، تو آپ کے آگے کچھ آپشنز آ جائیں گی۔ تو اس پہ ہم تھوڑا سا آج اور غور کریں گے کہ اس کو پراپرلی کس طرح ہم نے کرنا ہے۔ تو میں آپ کو اپنی اسکرین شیئر کر کے دکھانا چاہ رہی ہوں۔ یعنی میں نے آپ کو پچھلے وقت کہا تھا کہ آپ سمپلی گوگل پر جائیں گے اور آپ ٹائپ کچھ اس طرح کا آپ کر سکتے ہیں کہ کین آئی لیگلی سیل کیکس فرام مائی ہوم۔ اب ایک بات میں آپ کو دوبارہ کلیئر کر دوں، جو لوگ نئے ہیں، شاید پہلی بار ہمارا یہ بزنس کورس دیکھ رہے ہوں، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس ملک یا شہر یا سٹی میں ہیں۔ میں آپ کو اپنے حساب سے ایگزامپلس دکھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ مجھے یہاں پر امریکہ میں بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا کیا سٹیپس لینے پڑے تھے۔ اگر آپ پاکستان یا انڈیا میں ہیں تو آپ وہاں کے حساب سے پھر اس کو چینج کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن بہتر ہے آف کورس ایون اف یو تھنک کہ پاکستان میں اتنے رولز اور ریگولیشنز نہیں ہیں، آپ کو یہ چیزیں شاید نہ کرنی پڑیں، پھر بھی آئی ووڈ ہائیلی سجیسٹ کہ اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھیں تاکہ آپ کو پراپر انڈرسٹینڈنگ ہو، کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو۔ تو آپ نے سب سے پہلے جہاں بھی آپ ہیں، آپ گوگل پر جائیں اور ڈالیں کین آئی لیگلی سیل کیکس فرام مائی ہوم۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کے شہر کے حساب سے آپ کو گوگل جو ہے آپ کو آپشنز دے دے گا۔ اب مجھے میرے اسٹیٹ کے حساب سے آپشنز آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پہلا لنک آ رہا ہے کہ اوہایو ہوم بیکری کاٹیج فوڈ لا۔ کاٹیج فوڈ لا کے تھرو ہی میں نے اپنا لائسنس لیا ہے۔ اور بھی آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کئی سارے سوال آ رہے ہیں، اور یہ کہ ہوم بیکری لائسنس کیسے لینا ہے، اور بھی اس پہ آرٹیکلز لکھے ہوئے، تو اٹ کلیئرلی شوز می کہ میرے اسٹیٹ میں اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، رولز اور ریگولیشنز اور لاز ہیں، جو کہ اب مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے، مجھے فالو کرنے کی ضرورت ہے اگر میں اس بزنس کو پراپرلی کرنا چاہوں۔ تو کچھ پیجز ہیں میں نے آپ کے لیے آلریڈی کھولے ہوئے ہیں۔ اب کاٹیج فوڈ لا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میرے ایریا میں یہ چلتا ہے، تو میں نے اب اس کے حساب سے آرٹیکل کھولا ہے۔ اس میں کافی ساری انفارمیشن ہے، اگر میں اس پیج پہ جس طرح ہوں آپ کے سامنے، اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے، لسٹ آف چیزیں بھی دی ہوئی ہیں کہ کیا چیزیں میں سیل کر سکتی ہوں، کیا میں سیل نہیں کر سکتی، کس چیز کی مجھے پرمیشن ہے اور نہیں۔ میں آپ کے سامنے پورا جو یہ آرٹیکل ہے وہ تو نہیں آپ کے ساتھ گو تھرو کروں گی، ادروائز دا ویڈیو ول بی ٹو لانگ، اور یہ ان لوگوں کے لیے بورنگ ہو جائے گا جن پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا۔ تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، یہ وہ پارٹ ہے جو آپ نے اپنے لیے جو ہے اپنے حساب سے اس کو سرچ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ایون اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ اپلائی نہیں ہوگا، آپ پھر بھی سرچ کریں اور اس کو ضرور اپلائی کریں، کیونکہ رول نمبر 1 اس کہ اگر آپ اپنا بزنس ویک سٹارٹ کریں گے، اس کو لیگلائز نہیں کریں گے، تو بعد میں جا کر خدا نخواستہ ایون اف یو ڈو ہیو اے گڈ بزنس، پرابلمز ہوں گی لیگلائزیشن کی وجہ سے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، اینڈ وی ڈونٹ وانٹ دیٹ۔ آپ شروع سے ہی اس کی بیس اتنی اچھی اور اسٹرانگ سیٹ کریں کہ بعد میں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا پوائنٹ ہے۔ اب میں سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا کہ اس ویب سائٹ پہ جا کے میں نے پورا پراپرلی ریڈ کیا تھا کہ مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ ریڈ کرنے کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا کہ اچھا ہمارے اسٹیٹ میں لائسنس فیس اس کی $10 ہے، کئی اسٹیٹس میں $100 ہے، کئی میں اس سے زیادہ ہے، اور کئی میں تو الاؤڈ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے ساتھ ہی نمبر دیا ہوا ہے اوہایو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کا، ان کو پھر میں نے کال کی۔ اگر آپ کو ویب سائٹ پڑھ کر سمجھ نہ آئے کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، تو دیر از آلویز این آپشن کہ آپ
दिए हुए फ़ोन नंबर पर कॉल करें और उनसे काइंडली पूछ लें कि कैन यू काइंडली टेल मी कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे क्या कुछ चाहिए। तो उन्होंने बड़ी इजीली फिर हमें सारी चीज़ें बता दी थी कि हम आपके घर आएंगे। अब जिस तरह मेरा प्रोसेस ये था कि एक फूड इंस्पेक्टर मेरे घर आए थे, उन्होंने मेरे किचन को प्रॉपरली इंस्पेक्ट किया था, देखा था कि घर में कोई पेस्ट्स ना हो, जिस तरह कॉकरोचेज या इस तरह की कोई चीज़ें, और ये है कि साफ़ सुथरा हो। मैंने एक प्रॉपर अलग से जगह बनाई। प्रॉपर जगह से मतलब ये नहीं कि कुछ आपको स्पेशल बनाने की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास एक अलग से शेल्फ हो जिसमें आपने अपने केक पैन्स और केक टूल्स इस तरह की चीज़ें रखी हो, वो सारा मैंने प्रोसेस किया। फ्रिज में वो रिक्वायर कर रहे थे कि एक थर्मामीटर हो जिसमें सर्टन जो डिग्रीज हैं वो होना चाहिए, ताकि उनको ये श्योरिटी हो कि मेरा फ्रिज अच्छा ठंडा करता है, इट्स वर्किंग प्रॉपरली। फिर ये वो देख रहे थे कि मैंने अपनी फॉन्डेंट कहाँ पे स्टोर की हुई है, और मेरा ओवन देख रहे थे कि इज़ इट इन गुड वर्किंग कंडीशन। इस तरह की छोटी-छोटी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। और ये कि जिस तरह मैं पेट घर में नहीं रख सकती। अब चूँकि मैं होम बिज़नेस करती हूँ, अगर मैं चाहूँ कि डॉगी रख लूँ या बिल्ली रख लूँ या जो भी है, आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट, राइट? तो इट्स रियली गुड टू नो अहेड ऑफ टाइम, बजाय से कि मैं बगैर पढ़े हुए अपॉइंटमेंट ले लेती अपॉइंटमेंट, और उसके बाद जब ऑफिसर आते तो मेरे घर में एक बिल्ली होती, तो ऑब्वियसली मुझे लाइसेंस नहीं मिलना था। उसके बाद ये है कि वो जब देख लेते हैं कि आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, तो फिर जो है वो आपको चले जाते हैं, आपसे फ़ीस ले लेते हैं और आपको बाय मेल जो है आपको सर्टिफिकेट भेज देते हैं। और ये है कि आपका बिज़नेस जो है लाइसेंस कहलाता है, प्रोफेशनल कहलाता है, और आपका बस ये प्रोसेस है। तो ये मैंने आपको बता दिया अपने हिसाब से, और ज़बानी इसलिए बताया कि ऑब्वियसली आप जो सारे लोग देख रहे हैं, आप सबको ये रूल नहीं फॉलो करने। लेकिन पॉइंट ये है कि आई वांट यू टू स्टार्ट थिंकिंग इन द राइट वे, कि अच्छा आपने भी इन चीज़ों पे गौर करना है कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है, अपने बिज़नेस को रजिस्टर करने के लिए, इसको लीगल करने के लिए। तो जितना हो सके मेरी रिकमेंडेशन है, आप कॉल करके सही लोगों से पूछें कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे भी हुए हैं। और ये है कि जब मैंने फूड इंस्पेक्टर बुलाया था, तो इन लोगों की एक और रिक्वायरमेंट थी कि जब आप कस्टमर को अपनी जो प्रोडक्ट है, कस्टमाइज केक है, जब आप उन्हें सेल करें, तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर फूड लेबल, ठीक है। अब हमारे स्टेट में रिक्वायर्ड है कि हमारे पास प्रॉपर फूड लेबल हो, और उसका क्या मतलब है, व्हाट इज़ अ प्रॉपर फूड लेबल, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे पूरी रिक्वायरमेंट्स बताई थी, और उस हिसाब से मैंने फूड लेबल 2-3 सैंपल तैयार करके रखे हुए थे और उनको दिखाए थे। उन्होंने उसको ओके और डन कह दिया, और उसके बाद मुझे लाइसेंस दे दिया। तो मैं आपको फूड लेबल क्विकली दिखाना चाहती हूँ। उनका ये पॉइंट था कि आप हमें एक एग्जांपल दे दें। जिस तरह फ़र्ज़ करें मैं किसी कस्टमर को चॉकलेट केक सेल कर रही हूँ, और उसके ऊपर क्रीम चीज़ आइसिंग है, ठीक है। तो अब मैंने इंग्रेडिएंट्स डालनी है, जो जो चीज़ें मैं चॉकलेट केक में डालती हूँ वो सारी मैंने डाल देनी है। जिस तरह इसमें हो गया शुगर, बटर, और बटर के आगे आप देखें मैंने पेरेंथेसिस में क्रीम, नेचुरल फ्लेवरिंग्स डाला है। ये चीज़ें जो है मैंने बटर के पैकेज के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स थी वो उठाई हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑल पर्पस फ्लावर डाला है, तो उसके पैकेट पे जो ये सारी पेरेंथेसिस में आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, ये सारी उसके पैकेट पे ये इंग्रेडिएंट्स लिखी थी, तो वो फिर मैंने इसमें डाली हैं। यानी दे वांट डिटेल्ड इंग्रेडिएंट इन्फॉर्मेशन। फिर मैंने केक फ्लावर डाला एंड सो जो भी चीज़ें डलती हैं, ठीक है। फिर क्रीम चीज़ मेरी केक में जा रही है, तो उसमें क्रीम चीज़ जाएगी, सॉल्ट और पाउडर्ड शुगर एंड सो सारी चीज़ें लिस्ट कर दें। उसके बाद दे वांट कि आप अपने बिज़नेस का नाम इस पेज पे लिखें, और उसके नीचे वो आपका होम बिज़नेस होम एड्रेस देखना चाह रहे हैं कि ये कहाँ से आपने चीज़ सेल की है, और ये कि आप अपने कस्टमर को रेकमेंड करें कि ये चीज़ जो है रेफ्रिजरेटेड रहे। और नीचे आपने उसका जो है वेट लिख देना है, वेदर इट्स इन केजीज और पाउंड्स, जैसे भी आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरह ये कि आपके कस्टमर इन्फॉर्म्ड रहेगा कि ये आइटम्स जो हैं मेरे ऑर्डर में इंक्लूडेड हैं। तो हमारे लिए ये रिक्वायर्ड है। ऑफ कोर्स देयर आर मैनी पीपल ओवर हियर जो इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आप काम सही तरह करना चाहते हैं फॉलो, या फिर आप रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मशवरा यही होगा शुरू से कि आप रिस्क लेने वाला कोई काम ना करें, प्रॉपर करें, ताकि आपको पीस ऑफ माइंड हो कि भाई हमने हर चीज़ फॉलो की है जो सही है। शुरू से आप करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, वैसे आपको आदत हो जाएगी, तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक हो गया? आई होप दैट्स क्लियर सो फार। एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी कि आपने मेक श्योर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मेक श्योर करना है कि आपने एलएलसी फॉर्म करनी है। उसका क्या फ़ायदा है? एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, वो आपने फॉर्म करनी है। उसका ये फ़ायदा है, ये उसका ये मतलब है कि आपके पर्सनल एसेट्स जो हैं डेंजर में नहीं होंगे। अगर कोई कर्जा भी है या कुछ इस तरह का बिजनेस का, तो उस ये नहीं है कि आपको अपने पर्सनल चीज़ों के साथ उसको उतारना पड़ेगा, ठीक है। आपके पर्सनल एसेट्स, पर्सनल बिलोंगिंग, पर्सनल मनी जो है वो सिक्योर होगी। इन केस इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग इट विल ऑल बी ऑन द बिजनेस साइड, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्लस है। अपने जो कंपनी है उसको एलएलसी फ़ौरन से पहले आपने बना लेना है, ठीक है जी।
चलें जी, फिर अब ये हो गया कि हमने अपना बिज़नेस लाइसेंस कैसे लेना है। नेक्स्ट हम इस चीज़ के बारे में देखते हैं, चंद और चीज़ें हैं जिनको हमने करना है, और फिर इस तरह ये है कि हमारा कंफर्म हो जाएगा कि एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, और इसमें यह है कि इसके बाद फिर आप अपना इंशाल्लाह जो है ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर सकते हैं। इन सारे स्टेप्स के बाद आपने जो है अपने बिज़नेस को रजिस्टर करना है, ठीक है। टैक्स, जैसा मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, tax.ohio.gov। आई बिलीव कि मैंने आप लोगों के लिए वेबसाइट खोली थी, हाँ जी। तो ये वेबसाइट है, आपने जिस तरह हमें यहाँ पे ओहायो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जो है अपने बिजनेस नेम को जो है रजिस्टर करना होता है, उसका ये फ़ायदा है कि आप जब रजिस्टर करेंगे तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि क्या इसी नाम से कोई और कंपनी तो नहीं ऑलरेडी रजिस्टर हुई हुई। तो ये आपके लिए एक डबल चेक हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने बिजनेस इंश्योरेंस लेना है। ये सारी वो लीगल और वो चीज़ें तो मैंने इनको सबको जो है इकट्ठा इस पावर पॉइंट में कर दिया है। इवन दो कि मैं इंश्योरेंस का जिक्र पिछली क्लास में कर चुकी हूँ, लेकिन आई थॉट इट मेड सेंस कि जब मैं लीगैलिटी की बात कर रही हूँ तो मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करती जाऊँ कि आपने बिजनेस इंश्योरेंस देनी है। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट मेंशन की है, flipprogram.com। ये डेफिनेटली अमेरिका के हिसाब से है। आपने गूगल में जब सर्च मारना है होम बेकरी इंश्योरेंस, तो वो आपको आपके हिसाब से ऑप्शंस देगी, ठीक है। आई होप दिस इज़ नॉट कंफ्यूजिंग। अगर आपको कोई भी मेरे से क्वेश्चंस हैं या कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं मिल रही तो प्लीज़ मुझे ज़रूर नीचे जो है कमेंट्स में बताएं। मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं आप सबके जो है इंडिविजुअल क्वेश्चंस के आंसर्स दूं। अगर कोई किसी का मैं जवाब नहीं देती तो वो इंटेंशनल नहीं होता। समटाइम्स कोई कमेंट नज़र आता है और उसके बाद वो गायब भी हो जाता है, नज़र नहीं आता, तो मैं उसका फिर जवाब नहीं दे पाती। एक दो बार ऐसा हुआ है, लेकिन कोशिश यही है इंशाल्लाह कि ज़्यादा लोगों की मैं जवाब दे सकूं, क्योंकि चैनल बनाया ही इसलिए है कि सो दैट आई एम एबल टू हेल्प यू गाइस। तो अगर मैं आपके जवाब ही नहीं दूंगी तो ऑब्वियसली दैट वोंट बी हेल्पफुल। तो आप जो है बिला झिझक जो है नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, और ये कि आपको जो भी सवाल है तो मैं उनके इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी, ठीक है जी। आपकी अब जिस तरह हम यहाँ पे घर में रह रहे हैं तो हमने यहाँ पे होम इंश्योरेंस भी ली हुई है। अगर आप चाहें तो उनसे भी पता कर सकते हैं, शायद उनके अंडर ही आपका कवर हो जाए। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि अनफॉर्चुनेटली दे कैन से कि नहीं, यू आर नॉट सपोज टू डू होम बिजनेस, तो उस तरह भी आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर ये आपके लिए नहीं है पॉसिबल, ठीक है। और अगर आप किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में हैं, और आप या फिर आपने किसी का घर रेंट पर लिया हुआ है, तब भी आपको अपने लैंडलॉर्ड से, यानी जो मालिक मकान हैं, उनसे इजाज़त लेनी चाहिए कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक हो गया। तो ये सारी लीगल चीज़ें थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। ड्राई और रफ टॉपिक था, लेकिन हमें मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही थी अपनी कि आई हैव टू मेक श्योर दैट यू गाइज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लासों में जाएं तो आप मेंटली तौर पे फ्री हों कि अच्छा ये स्टेप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, क्लास नंबर 4। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्लास की तरफ विच इज़ क्लास नंबर 4, एंड इट्स सुपर एक्साइटिंग। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम अब जो है एक्साइटिंग स्टफ़ की तरफ आ रहे हैं। बोरिंग और लीगल स्टफ़ पीछे रह जाएगा और हम अब एक्चुअल में ऑर्डर्स लेना शुरू कर देंगे, और उनके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी क्लास नंबर 4 में, और आई होप कि आप अपना और अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखेंगे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।